हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी 16 चैप्टर 17 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ड्यूट्रोनॉमी 16-17 चैप्टर। धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तू नम्र को ऊंचा करता है, घमंडियों को नीचे गिराता है। पिता परमेश्वर तू ठट्ठा करने वालों से प्रसन्न नहीं होता है। अब फादर गॉड हमारे अंदर खुदा परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर जो पिता व्यवहार है खुदा, वो तेरे सच्चाई का सामना करने दे। हम सच्चाई के द्वारा परमेश्वर परखे जाए और सिद्ध रखे जाए। हम परमेश्वर झूठ की ताकत को हमारे अंदर से टूटता हुआ देखें और परमेश्वर हम विनती करते हैं कि सच्चाई का गढ़ हमारे अंदर मजबूत बनता जाए, तेरा भय हमारे अंदर बढ़ता जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 16। Asa by a league with the Syrians diverts Baasha from building of Ramah, his death and burial. First verse. In the 6th and 30th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah to the instant that he might let none go out or come in to Asa, king of Judah. Then Asa brought out silver and gold out of the treasures of the house of the Lord and of the king's house and sent to Ben-Hadad king of Syria that dwelt at Damascus, saying, There is a league between me and thee, as there was between my father and thy father. Behold, I have sent thee silver and gold. Go, break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me. And Ben-Hadad hearkened unto King Asa and sent the captains of his armies against the cities of Israel, and they smote Ijon and Dan and Abel-Maim and all the store cities of Naphtali. And it came to pass, when Baasha heard it, that he left off building of Ramah and let his work cease. Then Asa the king took all Judah, and they carried away the stones of Ramah and the timber thereof wherewith Baasha was building, and he built there with Geba and Mizpah. And at that time Hannah the seer came to Asa. Hanani the seer came to Asa king of Judah and said unto him, Because thou hast relied on the king of Syria and not relied on the Lord thy God, therefore is the host of the king of Syria escaped out of thine hand. Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host with very many chariots and horsemen? Yet because thou didst rely on the Lord, he delivered them into thine hand. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Then Asa was wroth with the seer and put him in a prison house, for he was in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people the same time. And behold, the acts of Asa, first and last, they are written in the book of the kings of Judah and Israel. And Asa in the 39th year of his reign was diseased in his feet, until his disease was exceeding great. Yet in his disease he sought not to the Lord, but to the physicians. And Asa slept with his fathers and died in the 41st year of his reign. And they buried him in his own sepulchres, which he had made for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odors and divers kinds of spices prepared by the apothecaries' art, and they made a very great burning for him.
Chapter 17. Jehoshaphat reigns well and prospers. He sends Levites to teach in Judah his greatness, explains, and armies. First verse. And Jehoshaphat his son reigned in his stead, and strengthened himself against Israel, and he placed forces in all the fenced cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken. And the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim, but sought to the Lord God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel. Therefore the Lord established the kingdom of his hand, and all Judah brought to Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in abundance, and his heart was lifted up in the ways of the Lord. Moreover, he took away the high places and groves out of Judah. Also in the 3rd year of his reign, he sent to his princes, even to Ben-Hail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nathaniel, and to Micaiah, to teach in the cities of Judah. And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nathaniah, and Zebodiah, and Zebediah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tubijah, and Adonijah, Levites, and with them Elishama and Jehoram, priests. And they taught in Judah, and had the book of the law of the Lord with them, and went about throughout all the cities of Judah, and taught the people. And the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat. Also, some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and tribute, silver, and the Arabians brought him flocks 7,700 rams, and 7,700 he goats. And Jehoshaphat waxed great exceedingly, and he built in Judah castles and cities of store, and he had much business in the cities of Judah. And the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. And these are the numbers of them according to the house of their fathers of Judah, the captains of thousands, Adnah the chief, and with him mighty men of valor, 300,000. And next to him was Jehohanan the captain, and with him 280,000. And next him was Amasiah the son of Zikri, who willingly offered himself unto the Lord, and with him 200,000 mighty men of valor. And of Benjamin And next to him was Jehohanan the captain, and with him 280,000. And next him was
Amahiah, the son of Zikri, who willingly offered himself unto the Lord, and with him 200,000 mighty men of valor, and of Benjamin Eliada, a mighty man of valor, and with him armed men with bow and shield 200,000. And next him was Jehozabad, and with him 180,000 ready prepared for the war. These waited on the king, beside those whom the king put in the fenced cities throughout all Judah. हम पढ़ेंगे हिंदी में इन्हीं वचनों को। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 17 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिबान तिखम्बा ओहशकर खसी है के बर्रो तालर बहा खसी आंदुरा। फसह का पर्व 16 अध्याय। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ सबेरे तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। सप्ताहों का पर्व। फिर जब तो खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। झोपड़ियों का पर्व। तू जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करे। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दिया करे। न्याय की नियुक्ति। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे।
तुम न्याय न बिगड़ना, तो न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। अन्य देवताओं की पूजा वर्जित। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना न करना और न कोई लाठी खड़ा करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। 17 अध्याय पहले वचन से, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो उस पुरुष या स्त्री की बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों के साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताए और न्याय की जो बात वे तुझसे कहे उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताए उससे दाहिने या बाएं न मुड़ना, और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने और या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। उस प्रकार तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे। थैंक यू जीसस। और फिर अभिमान नहीं करेंगे। राजाओं से संबंधित आदेश 14 वचन से आगे, जब तो उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता, और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग में फिर कभी न लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे। ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर लेना।
उसकी एक नकल अपने लिए कर लेना। रिबांति खंबर हुशराखा सिराल रुबांद्र कासे जिरे बेखतीन रबहंद्रा हल्लर बहका सीखे रबाहसा, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इसराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। Ribian sailor rahase kiando Lahdora sian say kian sailor La 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 2 years Bible reading plan, Romans 1 chapter 13 verse 23 verse, Psalms 87 chapter 88 chapter, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 13 वचन से 23 वचन तक, भजन संहिता 87 अध्याय 88 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं सभियों ने ऐसे ही पढ़ना है। हम इसीलिए अकेले में बैठकर पढ़ने की बात कह रहे हैं क्योंकि इसके कारण परमेश्वर का आत्मा हम में कोई सुधार लाना चाहे तो हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, और इसके लिए हमने ऐसा अकेले में बैठने का निश्चय लिया है। ज़रूरी नहीं सभियों ने ऐसे करना है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा से हमने सीखना है, और पवित्र आत्मा ही के द्वारा, पवित्र आत्मा ही का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।